تربیت نہیں ہوتی تو وہ گستاخ بھی ہو جاتا ہے اور گمراہ بھی ہو جاتا ہے، بے دین بھی ہو جاتا ہے۔ صاحب علم بھی مردود ہوتا ہے، صاحب ہنر بھی مردود ہوتا ہے، جو اپنے شعبہ علم میں یا شعبہ ہنر میں کرتے ہیں۔ تو یہ قوم سمود کا حال بھی تھا کہ اس قوم ہنر میں تھے اور بت پرستی کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام اس قوم کے لیے چنے ہوئے نبی۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے ارشاد فرمایا کہ میری قوم ایک خدا کی بندگی کرو، میں اس کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں، جو میں کہوں وہ کرو، جس چیز سے میں منع کروں باز آ جاؤ۔ فطرت انسانی ہے کہ جب کسی کو کسی چیز سے روکا جاتا ہے تو اس کی ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ کسی کو کسی چیز سے روکا جائے تو اس کی ضد اور بڑھ جاتی ہے۔ اگر وہ ہٹ درم ہے، ضدی ہے، اگر متکبر ہے تو بات کو جلدی سے نہیں مانتا ہے۔ صالح علیہ السلام نے فرمایا، لیکن قوم نے کہا سنیے، ہم آپ کو اتنے ہلکے میں نبی نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم نبی ہیں تو ہم سے پہلے جو نبی آئے تھے انہوں نے معجزہ دکھایا تھا۔ آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیے، لیکن جو نبی اور رسول اور ولی ہوتا ہے وہ نہ معجزہ دکھاتا ہے نہ کرامت دکھاتا ہے، ان سے معجزوں کا صدور ہو جاتا ہے، کرامتیں ہو جاتی ہیں۔ دکھانے والے تو شعبے باز ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا؟ آج آپ کے سماج میں ایسے بہت سے شعبے باز ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں دنیا روانے گا، اور آپ حقیقت کے ساتھ ان کے پاس جاتے ہیں، کہا بابا لڈو چاہیے، اچھا میں لڈو ٹھیک ہونا دے دیا، الائچی چاہیے دے دیا۔ تو جو بار بار آپ کی خواہش کی تکمیل کرے وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے اوپر مولا سید عالم نور مجسم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معجزہ کون ہوگا؟ بولے تو معجزہ، نہ بولے تو معجزہ، اصطلاحات فرمائے تو معجزہ، اور حضرت ام ہانی کے بستر سے اٹھ کر لامکہ جائے تو معجزہ۔ مصطفیٰ جان رحمت سے زیادہ معجزہ کون ہوگا؟ لیکن جب مکے میں کفار و مشرکین آئے تھے اور انہوں نے آنے کے بعد ان ایک بڑا شخصی وعدہ کیا گیا تو ایسا ہے، دیکھو جادو کا اثر آسمان میں نہیں ہوتا ہے۔ ہم لوگ چل کے سوال کرتے ہیں اگر وہ جادوگر ہوں گے تو اثر نہیں ہوگا۔ غرب کے ابو جہل کے ساتھ ایک پورا پہنچا اور سب نے کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو چاند کے 2 ٹکڑے کر دیجیے۔ میرے رسول کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مختار بنایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اگر معجزہ دکھانا ہو، اگر چشمہ جاری کرنا ہو تو وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ کیا کروں، اللہ کیا کروں؟ جب اللہ اجازت دے تو چشمہ جاری ہو، لیکن میرے رسول وہ ہیں کہ جنہیں اللہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس اشارہ کر رہے ہیں چاند ٹکڑے ہو جائیں۔ اچھا حضرت مولا علی کے لیے سورج پٹایا کتنی بار؟
से बोलते रहना, कितनी बार? हजरत जाबिर की बकरी को जिंदा किया कितनी बार? उनके बच्चों को जिंदा किया कितनी बार? अबू जहल की मुट्ठी में कंकरी ने कलमा पढ़ा कितनी बार? कंकरियों ने कदमों को चूमा कितनी बार? नबी के कंधे को टहनियों ने चूमा कितनी बार? समझ रहे हो ना? बार बार नहीं, बार बार। अच्छा आओ, जिनकी छत्र छाया में हम सब जीते हैं, मेरा ख्वाजा हिंदुस्तान में आया तो इस ख्वाजा ने जब पानी में पहरे लगाए गए तो मुख्तार बेटे का मुख्तार बेटा, मुख्तार का मुख्तार बेटा, उसने अपने प्याले को बह दिया और उसी प्याले में पूरा का सागर जमा हो गया। कितनी बार? पता क्या बेटा, वलियों नबियों से करामतें मुझसे बारदार नहीं होते, यक बार होते। यक बार को आप नहीं समझोगे, उलमा समझेंगे, इंसिडेंटली जिसको कहते हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया तो मोजज़ात नबी से ज़्यादा किसी के, हमारे नबी से ज़्यादा किसी के, मगर उससे उन्होंने नहीं दिखाया, ठीक है ना? जब जैसी जरूरत हुई दिखा दिया गया, ठीक है ना? और उससे भी हमारे नबी क्या फरमाते हैं? अगर लिवाउल हम्द मिल जाए तो नबी फरमाते हैं ला फखरा, शफाअते कुबरा मिल जाए तो नबी फरमाते हैं ला फखरा नहीं। तो मालूम क्या हुआ कि जिसको अल्लाह ताला नवाजता है, इनाम अता फरमाता है, वो सीना तान के नहीं रहता है। और कभी कुछ भी मिल जाए तो रब की बारगाह में छुपा हुआ होता है। ला फखरा नहीं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने इस बात को समझा, कम सुखन, ज़्यादा मुनाज़रा करने वाले नहीं थे, बड़े कम सुखन, और ये कौम बड़ी सिद्धि हटकर अरब की कौम को आप जानते हो, सारी दुनिया को गूंगा समझते हैं, खुद अपने ही को समझते हैं कि हम ही पढ़े लिखे। अज़ीज़ान गिरामी, सालेह अलैहिस्सलाम ने मना किया, भी देखो सिद्ध करो, जो मैं कहूँ वो करो, जिस चीज़ से मैं मना करूँ बात करो। और ने कहा ना, जब तक आप मौजज़ा नहीं दिखाएंगे हम आपको नबी नहीं मानेंगे। जब कौम मस्जिद हो गई तो नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। आपने पूछा क्या चाहते हो? आप वहां से कुछ जाहिर कीजिए तो हम मानेंगे कि आप नबी हैं। नबी ने फिर मना किया, जब नहीं माने तो आपने हाथ उठा लिया, आंखों को बंद किया, दिल की गहराइयों से इल्तिजा लब पे सजाना चाहते हैं कि कौम को यकीन हो गया कि ये भी नबी है, अगर दुआ कर देंगे तो पहाड़ बढ़ जाएगा, रोशनी जाहिर हो जाएगी। तो होना तो ये चाहिए था, जब यकीन हो गया था तो माफी के तरफ ना करते, कदमों पे गिर जाते। नबी अपनी उम्मत पर बहुत मेहरबान है, 1000 खता करके भी लौटो ना, अगर लौट जाओ जी, सैयद शोदा अमीर हमजा के कलेजे को चबाने वाली हिंदा भी अगर लौट कर सामने नबी में आ जाती है तो मुसलमान ठोकर नहीं लगाते, अपनी चादर में उसे भी जलाता है। नबी अपनी उम्मत पर बहुत मेहरबान होता है, लेकिन वो तो शान घटाने में लगे थे, नीयत खराब थी, जिद पे आमादा थे। जैसे ही आप लबकुशा होना चाहते हैं कि कौन का ठहरिए, अभी दुआ मत कीजिएगा, आप क्या कहना चाहते हो? आप गिरा लिया नबी ने कहा, ऐसी ऊँटनी बाहर आए समतल जमीन पे जो आते ही बच्चे को चलते। नबी ने फिर मना किया, लेकिन कौम जब मजीद फिर हाथ उठा दिया, आंखें बंद की, इल्तिजा को लब पे सजाना चाहते, फिर कौम को यकीन हो गया। ऐसा भी हो सकता है वो लौट आए होते दूसरी गलती, मगर वो तो नबी की शान घटाने में लगे थे। ठहरिए ठहरिए, अभी दुआ मत कीजिएगा, अभी हमारा जुमला मुकम्मल नहीं हुआ है, हमारा सेंटेंस मुकम्मल नहीं हुआ है, हम कुछ और कहना चाहते हैं। नबी ने कहा, क्या कहना चाहते हो? कहा, पहाड़ से ऊँचनी आए तो समतल जमीन पे आके बच्चे को चले, मगर काली सफेद हो। यहाँ आकर के पुलिस स्टाफ करते हैं, इंसान की अकल ठहर गई,
काला सफेद तो मुक्त हो नहीं सकता है। तो जब ये 3 शर्तें उन्होंने रखी तो नबी ने फिर फरमाया अच्छा ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ वादे लूंगा तो दूंगा, आप क्या कहते हैं? तो नबी ने फरमाया देखो पहाड़ फटेगा, ऊँटनी आएगी, बच्चे को चलेगी, काली सफेद होगी, मगर तुम्हारे कुएं में जा, तुम्हारे खेतों में जाके चलेगी, जितना खाए उसको खाने देना। कौन ने कहा तो ऊँटनी जितना खाएगी जितना खाएगी खिलाएगी, पानी भी तुम्हारे कुएं में जाके पानी पिएगी। तो कौन घबरा गई क्योंकि आज पानी बड़ी किल्लत से मिलता है। तो उन्होंने शर्त लगाई एक दिन हम पिएंगे एक दिन कुछ नहीं पिएगी। तो नबी ने फरमाया ठीक है, इसी में कायम रहना है, एक दिन तुम पीना, एक दिन नबी एक दिन ऊँटनी पिएगी। अगर तुमने ऊँटनी को तकलीफ दी तो अल्लाह को फरमाएगा। तो मैं कहा ठीक है, हम वादा करते हैं तकलीफ नहीं देंगे, आप दुआ कीजिए। नबी के इशारे पे कायनात का निजाम चलता है। मुस्तजाबुल दावात नबी नहीं होंगे तो कौन होगा? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने हाथ उठाया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की परवरदिगार आए रब्बे कबीर इलाहा नबी, मेरी कौम बड़ी जिद्दी हरदम है, अल्लाह लेकिन तू तो काजरे को तो ना खाए, तेरे कुल फरमाने से पहाड़ का वजूद हुआ है। ए मौला इस पहाड़ के सीने को चीर कर ऊँटनी जाहिर कर दे, जो समतल जमीन पे आके बच्चे को जने काली सफेद हो। अली जाने गिरामी अभी चेहरे पर हाथ फेरा ही था कि भयानक आवाज से पहाड़ फटा, दबे से चलती हुई ऊँटनी समतल जमीन पे आई, बच्चे को जना काली सफेद, लेकिन जब खेत में गई तो खेत का खेत खाने लगी, कुएं में गई तो एक दिन पे 2 दिन का पानी पीने लगी। कौम आजिज़ आ गई, आइए हमारा दाना पानी खा जाएगा जानवर, तो फिर हम क्या खाएंगे? तो भी लौट आए होते, तो भी लौट आए होते। सुनो भाई,